Good morning, students. Again, this is Professor Harinder Singh Taluja from Electronics and Communication Engineering Department, SISTEC, Ratipur, Bhopal. So today we are going to study our next topic, that is modulo and counter. Here we will see how we can design or how we can implement any mod counter which is given to us. So before designing, there are some steps that needs to be followed for designing. First step is, I will just write the steps. First step is we have to decide the type of flip-flop and the number of flip-flop to be used. We can write decide type and number of flip-flops to be used. This is the first step. या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि किस फ्लिप फ्लॉप से आपको बनाना है और डिपेंड करेगा जो n है हमारा मॉड n, वो डिसाइड करेगा कि कितने फ्लिप फ्लॉप्स की आवश्यकता पड़ेगी. वी विल सी इन द एग्जांपल. नाउ सेकंड, वी हैव टू ड्रॉ और वी हैव टू राइट द एक्साइटेशन टेबल ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप. Excitation table and characteristic table already we have seen in the flip-flop unit, and already we know that characteristic table is used for analyzing any clock sequential circuit and the excitation table is used for designing or implementing any clock sequential circuit. So in this हमने जो डिसाइड किया हुआ है किस टाइप का फ्लिप फ्लॉप हमें चाहिए, either T, either JK, either D, उसके बेस पे हम डिसाइड करेंगे हमें एक्साइटेशन टेबल उसी फ्लिप फ्लॉप की बनानी पड़ेगी. थर्ड इज वी हैव टू मेक अ स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम. एंड इस स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम जो हमने बना रहे हैं, थर्ड स्टेप, दैट इज विद द हेल्प ऑफ स्टेप नंबर 2. तो अब हम फोर्थ स्टेप पे क्या करेंगे, हम इनके फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट इक्वेशन निकालेंगे. We will derive the flip-flop output equation. शॉर्ट में लिख दे रहा हूं flip-flop FF, flip-flop output equation with the help of K-map. K-map की मदद से हम निकालेंगे इसको. एंड लास्ट जो हम आउटपुट flip-flop output equation derive की हमने, उसके हेल्प से हम निकालेंगे और बनाएंगे लास्ट में लॉजिक डायग्राम. Draw the logic diagram. These are the steps which we need to be followed for designing any mod and counter. So we will see one example or one or two example in this topic. So we will take an example. We will design mod 5 counter. Okay, mod 5 counter. अब और ये भी दिया हुआ क्वेश्चन में, we have to design it using T flip flop. सपोज दिया हुआ है, we have to make it using T flip flop. तो mod 5 से हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितने फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता होगी हमें. Mod 5 means we have 5 combinations of binary. अगर हमारे पास 4 combinations binary के होते हैं, that means 0 0 0 1 1 0 1 1, तो हमें कितने वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी? 2 वेरिएबल्स. जितने वेरिएबल्स की आवश्यकता पड़ेगी उतने ही नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी हमें. सपोज अगर हमारे पास mod 4 होता, तो mod 4 मतलब 2 to the power n is equal to 4. Fine. Where n is what? 2 to the power 2 is 4. तो ये जो n है, n डिसाइड करता है कि कितने नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप हमको चाहिए. ये अप्लाई होगा जब हम 0 से लेके मतलब 1 से लेके 4 तक जाएंगे. फाइन. mod 5 मींस 4 से बढ़ गया. अब 4 तक आएगा तो 0 0 0 1 1 0 1 1. दिस इज स्टेट, दिस इज फॉर आपका डेसिमल 0 है,
ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो हम इनको अलग अलग मॉड बोलना, दिस इज माई मॉड 1, दिस इज माई मॉड 2, दिस इज माई मॉड 3, दिस इज माई मॉड 4। तो मॉड 4 तक हमें 2 ही बिट की आवश्यकता पड़ रही थी, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें 2 फ्लिप फ्लॉप की आवश्यकता पड़ेगी। अगर हम मॉड 5 पे आते हैं तो मॉड 5 के लिए वी नीड 3 वेरिएबल्स, क्योंकि अगर हम आगे जाएंगे, दिस इज माई मॉड 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। अब 5 के लिए क्या ये 2 बिट से काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। वी नीड 3 bits, that is 1 0 0. That means these 3 signifies that we require 3 flip flops. Fine. तो ये कब तक 3 flip flop लगेंगे हमें? हम जब तक जाएंगे mod 6, mod 7, mod 8 तक. That is 1 0 1, 1 1 0 and 1 1 1. तो 1 1 1 तक जाएंगे. That is mod 5, mod 6, mod 7, mod 8. कोई भी क्वेश्चन आपको दिया रहता तो you need 3 flip flops. क्लियर है? इसी तरीके से अगर mod 9 दिया रहेगा तो mod 9 को ऑक्यूपाई करने के लिए you need 4 bits, that is 1 0 0 0. So from mod 9 you need 4 flip flops. This is how you will decide the number of flip flops to be used in mod n counter. So in this we have seen it is given that we have to design it using T flip flop and the flip flop required is 3. Okay, so we require 3 flip flops. Right? Now, this is first step. Second step, we have to write the excitation table of the flip flop. तो हम यहाँ पर T flip flop यूज कर रहे हैं, तो T flip flop का excitation table क्या होगा? Excitation table of T flip flop. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको। तो T फ्लिप फ्लॉप में हमारे जो इनपुट्स होंगे एक्साइटेशन टेबल में वो होंगे प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। तो प्रेजेंट स्टेट क्या है? QT, और नेक्स्ट स्टेट क्या है? QT+1। इनके 2 के 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, दैट इज 0 0 0 1 1 0 1 1। नाउ आउटपुट विल बी T, दैट इज जो फ्लिप फ्लॉप का इनपुट है वो हमारा इस एक्साइटेशन टेबल में आउटपुट होगा। और T फ्लिप फ्लॉप के केस में हमें पता है उसका नेचर डिपेंड करता है या सेम रिजेंबल करता है एक्सऑर गेट की तरह। अगर सेम इनपुट होंगे तो आउटपुट 0 होगा, डिफरेंट इनपुट होंगे तो आउटपुट 1 होगा। तो यहाँ पर हम देखें 0 0 आर द सेम इनपुट, वी विल गेट आउटपुट 0, 1 1 इज द सेम इनपुट, वी विल गेट आउटपुट 0। नाउ वी विल सी द अदर केसेस, 0 1 इज द डिफरेंट इनपुट्स, so we will get output 1, 1 0 are the different inputs, so we will get again output 1। so this is the excitation table of T flip flop। now next is we have to make a state table, है ना। तो स्टेट टेबल के पहले हम उसको बनाते हैं स्टेट डायग्राम। स्टेट डायग्राम कैसे बनेगा? चूंकि मॉड n है, हम कितने फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं? 3 फ्लिप फ्लॉप ले रहे हैं। तो 3 फ्लिप फ्लॉप के मैक्सिमम कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0 से लेके 1 1 1। तो उसका स्टेट डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा मॉड n काउंटर का, मॉड 5 काउंटर का। you see 0 0 0 to 0 0 1 0 1 0 0 1 2 0 1 0 and then 0 1 0 2 0 1 1 and then 0 1 1 2 1 0 1। चूंकि हम मॉड 5 की बात कर रहे हैं, दिस इज मॉड 1 2 3 4 5, उसके आगे के स्टेट्स नहीं आएंगे। तो मतलब काउंटर क्या करेगा? सिर्फ 5 तक काउंट करेगा, उसके बाद वो हमारे ओरिजिनल 0 0 स्टेट पे पहुंच जाएगा। इस तरीके से अगर हमारा प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 हुआ तो उसका नेक्स्ट स्टेट होगा 0 0 1। अगर हमारा प्रेजेंट स्टेट 0 0 1 हुआ तो उसका नेक्स्ट स्टेट होगा 0 1 0। अगर हमारा प्रेजेंट स्टेट 0 1 0 हुआ तो उसका नेक्स्ट स्टेट होगा 0 1 1। अगर हमारा प्रेजेंट स्टेट 0 1 1 हुआ तो उसका नेक्स्ट स्टेट होगा 1 0 1। अगर हमारा प्रेजेंट स्टेट 1 0 1 हुआ तो उसका नेक्स्ट स्टेट होगा 0 0 0। अब इसकी हेल्प से बनाएंगे इसका स्टेट टेबल। नाउ विल सी द स्टेट टेबल। तो मैं स्टेप नंबर 4 विल मेक स्टेट टेबल। स्टेट टेबल में ऑलरेडी हमको पता है एंट्रीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले होंगी हमारे प्रेजेंट स्टेट्स, प्रेजेंट स्टेट्स। तो हमारे पास कितने फ्लिप फ्लॉप्स हैं? 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो हम नाम दे सकते हैं उनके A B C। तो वी हैव गिवन द नेम A B C। Here basically this is AT, BT and CT. This is for present state. Now we'll take the next state। नेक्स्ट स्टेट में भी वही होंगे हमारे
फ्लिप फ्लॉप एबीसी, बट नेक्स्ट स्टेट में टी प्लस वन आ जाएगा, दैट इज एटी प्लस वन, बीटी प्लस वन एंड सीटी प्लस वन. And next is your flip flop inputs. Flip flop inputs. So we have three flip flops: TA, TB, and TC. Right. So these are the entries for your state table. तो हम देखें हमारे पास 3 इनपुट है, 3 फ्लिप फ्लॉप है, तो उसके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे. तो 8 कॉम्बिनेशन हम बना लें 0 0 0 से लेकर 0 सॉरी 1 1 1 तक. तो 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1. यहाँ पर आपका आएगा 1 0 0. फाइन. लेट्स सी. अब स्टेट टेबल के हिसाब से हम देखेगा, तो जब हमारा प्रेजेंट स्टेट 0 0 0 था, उसका नेक्स्ट स्टेट क्या था? 0 1 0 0 सॉरी 0 0 1. फिर जब हमारा प्रेजेंट स्टेट 0 0 1 था, तो उसका नेक्स्ट स्टेट क्या था? 0 1 0. जब हमारा प्रेजेंट स्टेट 0 1 0 तो उसका नेक्स्ट स्टेट क्या था? 0 1 0 0 1 1 सॉरी. जब हमारा प्रेजेंट स्टेट 0 1 1 था, तो उसका नेक्स्ट स्टेट क्या था? 1 0 0. एंड जब हमारा प्रेजेंट स्टेट 1 0 0 था, तो नेक्स्ट स्टेट क्या था हमारा? अगेन 0 0 0. उसके बाद के स्टेट्स के लिए डिफाइन नहीं किया गया है, क्योंकि हम ले रहे हैं मॉड 5 तक, तो उसके बाद के स्टेट्स की हमें जानकारी नहीं है. वी विल टेक इंफॉर्मेशन लेस, दैट इज 0 0 0 0 0 0 बाय डिफॉल्ट and 0 0 0. Fine. This is how we can fill it. Now, अब हमें फिल करना है फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स. फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स को फिल करने के लिए we will take the help of excitation table of flip flop. तो excitation table of flip flop की अगर बात करें, ये मेरा प्रेजेंट स्टेट है, नेक्स्ट स्टेट है, और ये मेरा टी इनपुट है. अब यहाँ पर हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं, टीए, टीबी एंड टीसी. तो अब अगर हम टीए फिल करेंगे तो हम चेक करेंगे एटी एंड एटी प्लस वन. सिमिलरली जब हम टीबी फिल करेंगे तो विल सी बीटी एंड बीटी प्लस वन. सिमिलरली व्हेन विल फिल टीसी विल सी सीटी एंड सीटी प्लस वन. दैट इज प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट, प्रेजेंट स्टेट एंड नेक्स्ट स्टेट. तो फर्स्ट वी विल फिल टीए, तो उसके लिए हम चेक करेंगे एटी एंड एटी प्लस वन. हर एक रो के लिए हम उसका प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट की वैल्यू चेक करेंगे. और टी के केस में हमें पता है अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 होगा, और दोनों इनपुट डिफरेंट है तो ही आउटपुट 1 होगा. इसी कंसेप्ट को बस हम हमने ध्यान में रखें. तो नाउ विल सी 80 एंड 80 प्लस 1 एंड विल फिल टीए. तो दोनों 0 है, फर्स्ट स्टेटमेंट मतलब सेम है तो 0. दोनों 0 अगेन सेम है 0. दोनों 0 है सेम है 0. 0 1 डिफरेंट है, डिफरेंट होगा तो आउटपुट 1 होगा. 1 0 डिफरेंट है, आउटपुट 1 होगा. 1 0 डिफरेंट है, आउटपुट 1 होगा. अगेन 1 0 डिफरेंट है, आउटपुट 1 होगा. लास्ट में 1 0 डिफरेंट है, आउटपुट 1 होगा. तो लाइक दिस वी हैव टू फिल टीबी एंड टीसी आल्सो. अब टीबी को फिल करते समय हम चेक करेंगे बीटी एंड बीटी प्लस 1 इन द सेम मैनर. 0 0 सेम है 0. 0 1 डिफरेंट है तो आउटपुट 1. 1 1 सेम है, अगेन आउटपुट 0. 1 0 सेम है तो सॉरी डिफरेंट है, आउटपुट 1. 0 0 सेम है, आउटपुट 0. अगेन 0 0 सेम है, आउटपुट 0. Again 1 0 different output 1. Again 1 0 different output 1. Now we'll check for TC. TC के लिए हम चेक करेंगे CT और CT plus 1. CT और CT plus 1 फर्स्ट स्टेट के लिए देखते हैं. 0 1 different 1. 1 0 different again 1. 0 1 different again 1. 1 0 different again 1. 0 0 same output 0. 1 0 different again output 1. Again 0 0 same output 0. 1 0 different output 1. So like this we have to fill TA, TB, TC, that is the flip flop inputs. अब मैं रब कर दे रहा हूं. तो हमारा अगला स्टेप क्या था कि हम डेराइव करेंगे फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ के मैप. तो के मैप की मदद से हम इसकी इक्वेशंस डेराइव करेंगे. तो वी हैव टू मेक 3 के मैप्स, 1 for TA, 1 for TB and 1 for TC. एंड चूंकि हमारे पास इनपुट्स 3 है एबीसी या 3 फ्लिप फ्लॉप है तो 8 ब्लॉक का के मैप बनेगा. वी विल मेक 3 के मैप्स सेपरेटली. A B C 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0
this for TA. Similarly we will get for TB A B C 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 TB. Similarly we made for TC A B C 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1. दिस फॉर TC. हम TA देखें तो TA के लिए देखें 1 कहाँ आ रहा है, एक आ रहा है 0 1 1 पे, तो 0 1 1 पे 1 आ रहा है. बाकी जब हमारा A1 है मतलब A1 है तो चारों पे हमारा 1 1 1 आ रहा है, तो मतलब नीचे के पूरा रो 1 1 1 है, बचे हुए 0. फर्स्ट वी विल फिल फॉर TB TC आल्सो. सिमिलरली TB देखें 1 कहाँ आ रहा है, 0 0 1 पे 1 आ रहा है, तो 0 0 1 पे 1 आ रहा है. अगला 1 आ रहा है 0 1 1 पे, अगेन 0 1 1 पे 1 आया. अगला 1 आया आपका 1 1 0 पे, 1 1 0 पे 1 आया. अगला 1 आ रहा है आपका लास्ट 1 1 1 पे, यहाँ पर 1 आया. बाकी सभी जीरोस. नाउ विल सी फॉर TC. TC पे 1 कहाँ आ रहा है, शुरू के चारों पे. जब A की वैल्यू 0 है, A की वैल्यू 0 है तो शुरू के चारों पे आएगा लाइक दिस. नाउ विल सी अगला 1 कहाँ आ रहा है, 1 0 1 पे आ रहा है, 1 0 1 पे ये 1 है. फिर 1 आ रहा है हमारा 1 1 1 पे, दैट इज 1 1 1 पे, बचे हुए 0. नाउ विल मेक द ग्रुपिंग्स. ग्रुपिंग करें अगर हम, एक तो ये क्वाड हो जाएगा और एक पेयर हो जाएगा. इस क्वाड को रीड करें, दिस क्वाड इज A प्लस पेयर है दैट इज BC, क्योंकि A चेंज हो रहा है, एक जगह 0 एक जगह 1 है. सिमिलरली इसको हम पढ़ें, एक तो ये पेयर है और एक ये पेयर. इन दोनों पेयर से हमारा पूरा सिंप्लीफिकेशन हो रहा है. इस पेयर क्या वैल्यू क्या होगी, दैट इज A बार, दैट इज C. इस पेयर की वैल्यू क्या होगी, A एंड देन B. ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसको, वी नो हाउ टू मेक इट. इसके लिए एक ये क्वाड बनेगा और एक ये क्वाड बनेगा, दो क्वाड से सॉल्व हो जाएगा. तो फर्स्ट वाला क्वाड जो है उसके लिए वैल्यू है A बार, और दूसरा वाला क्वाड है उसके लिए वैल्यू है आपकी C. तो दिस इज द फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशंस TA TB एंड TC. अब इन तीन फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन से जो हमने डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ K में, वी विल नाउ ड्रॉ द लास्ट स्टेप दैट इज द लॉजिक डायग्राम. तो ये मैं स्टेट टेबल अब कर रहा हूं. Now we know that we have 3 flip flops, तो 3 flip flop बनाते हैं पहले ब्लॉक डायग्राम्स. सिंक्रोनस है अगर तो सभी को सेम क्लॉक पर से कनेक्टेड कर दें. ऑलरेडी हम सिंक्रोनस का ही एग्जांपल ले रहे हैं. फर्स्ट वन है TA TB एंड TC. 3 फ्लिप फ्लॉप्स TA TB TC. इनके आउटपुट्स होंगे A बार, B बार, C बार. अब हम देखें हमारे इनपुट्स क्या क्या हैं. तो हमारे TA हमारा एक फ्लिप फ्लॉप है, TA, दिस इज TA नॉट, दिस इज T फ्लिप फ्लॉप, और वी कैन से A फ्लिप फ्लॉप, A फ्लिप फ्लॉप, दिस इज B फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज C फ्लिप फ्लॉप. जो वैरायटी ली हमने TA है तो पहले वाले का इनपुट TA होगा, दूसरे का TB एंड तीसरे का TC. अब TA देखें, TA पे हमें क्या वैल्यू मिल रही थी, A प्लस BC, मतलब BC मतलब एंड गेट मल्टीप्लीकेशन है और प्लस मीन्स और गेट. तो A साथ में इनपुट और इस एंड गेट के इनपुट क्या है BC. तो एक हम ले लें B from here like this and C from here we take. So this is TA. Now for TB again we have A bar C plus AB, मतलब दो एंड गेट लगेंगे
और आउटपुट पे एक और गेट लगेगा। इस और गेट का आउटपुट जो रहेगा वो टीवी पे जाएगा। ये जो एंड गेट्स हैं उसके इनपुट्स क्या क्या है, ए बार सी, ए बार सी, ए हमने यहां से ले लिया ए बार, और सी की लाइन ऑलरेडी नीचे से जा रही है तो हमने यहां से कनेक्ट कर दिया, जैसे ए बार सी। नेक्स्ट इज ए बी, बी, तो ये बी की लाइन ये ऑलरेडी जा रही थी यहाँ पर, तो यहाँ से हमने कनेक्ट कर दिया। और साथ में क्या है, ए की लाइन हमारी ये है, इसको मैंने स्ट्रेच कर दिया, आई हैव कनेक्टेड हियर, दिस इज ए बार सी प्लस ए बी। नाउ फॉर टीसी इट इज ए बार प्लस सी, मतलब और गेट लगेगा और और गेट आउटपुट टीसी पे, और इसके इनपुट्स क्या है, ए बार सी। तो सी तो हमारा ये है और साथ में ए बार हमारा यहां तक था, इसी को लाइन को हम एक्सटेंड कर दें, दिस इज ए बार सी। सो दिस इज हाउ वी हैव डिजाइन द मॉडुलो 5 काउंटर, है ना। अगेन आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स, आपको डिसाइड दिया रहेगा कौन सा मॉड काउंटर आपको बनाना है, उस बेस पे आप डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स कितने होंगे, और ये भी दिया रहेगा किस फ्लिप फ्लॉप से बनाना है आपको। And then next step you have to make the excitation table, draw the excitation table of the flip flop, and then with the help of that excitation table we will draw the state table, और उस state table फिर state diagram, और उस state diagram और state table बन गया आपका। फिर आप derive करेंगे flip flop input equation with the help of K-map, and जो आपकी flip flop input equations बना दी उससे आप लास्ट में logic diagram बनाएंगे। तो हम एक और एग्जांपल लेते हैं with other flip flop ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो we'll see here different mod counter. So we'll take here mod 7 counter. Okay, I'll just rub everything, and here we'll take the JK flip flop ताकि आपका कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि डी फ्लिप फ्लॉप पे तो एक्साइटेशन टेबल जो है आपकी डी इनपुट की तरह ही काम करेगी, तो हम लेते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। तो विल सॉल्व हियर विद जेके। फाइन, तो सबसे पहले मॉड 7 काउंटर, मतलब मैंने आपको बताया था मॉड 5, मॉड 6, मॉड 7, मॉड 8 तक हमें 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। अगेन वी हैव 3 फ्लिप फ्लॉप्स हियर, वी रिक्वायर 3 फ्लिप फ्लॉप्स। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज हमें जेके का एक्साइटेशन टेबल बनाना है। तो एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके विल सी एक्साइटेशन, QT present state, QT plus 1 next state, we have 4 states 0 0 0 1 1 0 1 1, 4 combinations, और इनपुट्स हमारे जो जेके हैं वो हमारे इसके एक्साइटेशन टेबल के आउटपुट होंगे। हमने ऑलरेडी पता है हमें इट इज 0 1 डोंट केयर एंड इसके लिए अपोजिट क्रॉस 1 0। तो दिस इज एक्साइटेशन टेबल ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, ऑलरेडी वी हैव सीन इट, हम पढ़ चुके हैं इसको। अब हम क्या करेंगे, इस एक्साइटेशन टेबल की मदद से हम बनाएंगे आपका स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम। पहले स्टेट टेबल बनाएंगे इसकी मदद से। तो स्टेट डायग्राम की अगर हम बात करें तो मॉड 7 तक जा रहा है ना। तो मॉड 7 तक जा रहा है, मतलब ये उस समय तक आपका कहां तक गया था, मॉड 1 मतलब आपका 0 0 0, और मॉड 7 मतलब आपका कहां तक जाएगा 1 1 0। तो अब हम इसका स्टेट डायग्राम अगर हम देखना चाहें, स्टेट डायग्राम किस तरीके से रहेगा, 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0, and then थोड़ा नीचे दे देता हूँ आपको, that is 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0. This is mod 1 2 3 4 5 6 7. It will move like this. क्लियर है। तो जब प्रेजेंट स्टेट होगा तो इसका नेक्स्ट स्टेट ये, जब प्रेजेंट स्टेट है उसका नेक्स्ट स्टेट ये, एंड सिमिलरली जब प्रेजेंट स्टेट है इसका नेक्स्ट स्टेट। नाउ वी मेक द स्टेट टेबल। सबसे पहले एंट्री में स्टेट टेबल की प्रेजेंट स्टेट,
तो प्रेजेंट स्टेट में हमारे पास क्या होंगी, ए, एटी, बीटी एंड सीटी. नेक्स्ट स्टेट again it is AT plus 1, BT plus 1 and next is CT plus 1. Next is flip flop inputs. Flip flop inputs हमारे पास 3 फ्लिप फ्लॉप्स है ABC एंड JK टाइप ले रहे हैं, तो JK मतलब हर फ्लिप फ्लॉप में 2 इनपुट्स होंगे JK. तो यहाँ पर कितने आएंगे, 6 JK, JB, KB, JC एंड KC. फाइन. तो अब हम इसको डिजाइन करते हैं. तो 3 के 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 एंड 1 1 1. फाइन. अब हमें पता है कि अगर 0 0 0 इनपुट होगा, सॉरी प्रेजेंट स्टेट होगा, तो नेक्स्ट 0 0 1 होगा. इस तरीके से अब 0 0 1 अगर प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 0 होगा. 0 1 0 अगर प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट 0 1 1 होगा. और 0 1 1 अगर प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट 1 0 0 होगा. और 1 0 0 अगर प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट 1 0 1 होगा. और 1 0 1 अगर प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट 1 1 1 1 0 होगा. और 1 1 0 अगर प्रेजेंट स्टेट है तो नेक्स्ट स्टेट 0 0 0 होगा. और अगली स्टेट डिफाइन नहीं है तो अगेन उसका बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट स्टेट 0 0 होगा. अगर ये मॉड 8 होता तो मॉड 8 में हम 1 1 0 के बाद आता 1 1 1, तो इसका प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट 1 1 1 होता, फिर लास्ट में 1 1 1 से हम 0 0 जाते. ठीक है. तो लाइक दिस द कंसेप्ट ऑफ मॉड n विल बी एप्लीकेबल. नाउ अब हमें फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स भरना है विद द हेल्प ऑफ एक्साइटेशन टेबल ऑफ JK फ्लिप फ्लॉप. तो अगेन जब हम JK भरेंगे तो विल सी AT एंड AT plus 1, क्योंकि हमें पता है AT plus 1 इज योर QT plus 1 एंड AT इज योर QT. सिमिलरली जब हम JB भी भरेंगे तो विल सी BT एंड BT plus 1. सिमिलरली व्हेन वी विल फिल JC KC विल सी CT एंड CT plus 1. ऑलरेडी हम ये कंसेप्ट डिजाइनिंग में देख चुके हैं जब हमने क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट की डिजाइनिंग की. हम फिल करते हैं और इस टेबल का हम यूज करेंगे. इस टेबल का यूज करके सबसे पहले हम देखते हैं AT और AT plus 1. तो जब 0 0 है तो J पे 0 है, K पे क्रॉस है. और जब 0 0 अगेन 0 क्रॉस, 0 0 है, 0 क्रॉस, 0 1. जब 0 1 है तो J पे 1 और K पे क्रॉस. 1 1 है तो J पे क्रॉस, K पे 0. अगेन 1 1 है, क्रॉस 0. 1 0 है तो J पे क्रॉस, K पे 1. अगेन 1 0 है, क्रॉस. लाइक दिस वी हैव फिल्ड JK. नाउ वी हैव टू फिल JB को फिल करेंगे तो विल सी BT एंड BT plus 1. अगेन सेम कंसेप्ट. 0 0 है, 0 क्रॉस. अगेन 0 1 है, 1 क्रॉस, मतलब J पे 1 और K पे क्रॉस. अगेन 1 1 है तो क्रॉस 0. अगेन 1 0 है, क्रॉस 1. अगेन 0 0 है तो 0 क्रॉस. अगेन 0 1 है तो 1 क्रॉस. अगेन 1 0 है, क्रॉस 1. अगेन 1 0 है, अगेन क्रॉस 1. नाउ फिर JC KC को फिल करेंगे. उसके लिए चेक करेंगे CT और CT plus 1. तो 0 1 है तो इट इज 1 क्रॉस. 1 0 है, अगेन क्रॉस 1. अगेन 0 1 है तो इट इज 1 क्रॉस. 1 0 है, अगेन क्रॉस 1. अगेन 0 1 है, दैट इज 0 क्रॉस. 0 1 में 1 क्रॉस 1. 1 0 है, क्रॉस 1. अगेन 0 0 है लास्ट में, सेकेंड लास्ट. तो 0 0 का तो 0 क्रॉस और लास्ट में 1 0 अगेन क्रॉस. लाइक दिस यू विल फिल द स्टेट टेबल. अब हम इस स्टेट टेबल की मदद से फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स की जो वैल्यूज हैं और K-मैप की मदद से हम
इनके फ्लिप फ्लॉप इनपुट की इक्वेशन निकालेंगे। तो उसके लिए हमें लगेंगे यहाँ पर 6 KMF। वी रिक्वायर 6 KMF फॉर ऑल द फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स, दैट इज फॉर J, K, JB एंड KC। सो विल जस्ट मेक इट फास्ट। सभी 8 ब्लॉक्स के बनेंगे। This is A, B, C. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. This for J, this for K. Again it is A, 0, 1, B, C, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. This for J, B, K, B. This for J, C and K, C. Again that's A, 0, 1, B, C, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, A, 0, 1, B, C, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, again A, B, C, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, again it's A, B, C, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Now we see the entries. हम सबसे पहले J देखें, तो J देखें 1 कहाँ आ रहा है, 0, 1, 1 पे, तो 0, 1, 1 पे 1 आ रहा है। बाकी नीचे के चारों, दैट इज जब A की वैल्यू 1 है, ये पूरा रो डोंट केयर, बचे हुए 0। फिर K फिर करें, K देखें तो शुरू के चारों जब A की वैल्यू 0 है तो डोंट केयर है, दैट इज क्रॉस है। उसके बाद 1 कहाँ आ रहा है, एक आ रहा है 1, 1, 0 पे 1 आ रहा है, सॉरी दिस इज 1, 1, 1, 0 पे 1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है हमारा 1, 1, 1 पे, बचे हुए सब 0 है। अब JB देखें, JB पे 1 कहाँ आ रहा है, 0, 1, 1 पे, 0, 0, 1 पे, फिर 1 फिर क्रॉस आ रहा है हमारा 0, 1, 0 पे, फिर 0, 1, 1 पे भी क्रॉस आ रहा है, फिर थोड़ा नीचे आए, फिर 1 हमारा कहाँ आ रहा है 1, 0, 1 पे, फिर हमारा क्रॉस कहाँ आ रहा है 1, 1, 0 और 1, 1, 1 पे, तो 1, 1, 0 और 1, 1, 1 पे, बचे हुए 0। हम KB देखें तो KB पे शुरू के 2 एंट्रीज पे क्रॉस है 0, 0, 0, 0, 0, 1 पे, उसके बाद 0, 1, 0 पे 0 है और 0, 1, 1 पे 1 है, तो 0, 1, 1 पे 1 है। सिमिलरली नीचे आ जाए, फिर वही है 1, 0, 0, 1, 0, 1 पे क्रॉस है और 1, 1, 0 पे 1 है, 1, 1, 0 पे 1 है और उसके साथ सॉरी हम फिल कर रहे थे KB, 1, 1, 0 पे 1 है और 1, 1, 1 पे भी 1 है, फाइन। अब हम आ जाए JC पे, JC पे देखें तो 0, 0, 0 पे 1 है, फिर 0, 0, 1 पे क्रॉस है, अगेन 0, 0, 0, 1, 0 पे 1 है एंड 0, 1, 1 पे क्रॉस है, 0, 1 सॉरी 0, 1, 0 पे क्रॉस है, 0, 1, 0 पे क्रॉस है और फिर 0, 1, 1 पे 1 है। ये हम JC देख रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको जस्ट फिल इट वंस मोर। बहुत सारी स्टेट्स एक साथ हो गई है तो इसलिए देखने में हौच पौच हो रहा है। ओके, तो टिल KB वी हैव सीन, KB में आपका आ गया दैट इज क्रॉस क्रॉस 0, 1 एंड देन क्रॉस क्रॉस 1, 1, ठीक है। हमें देखना है अब JC पे देखा इट इज 1 क्रॉस, फिर 0, 1, 1 पे भी क्रॉस है और 0, 1, 0 पे 1 है। विल सी फॉर दिस JC। फिर नीचे आए अगेन, उसके लिए 1, 0, 0 पे 1 है, 1, 0, 1 पे क्रॉस है और फिर 1, 1, 0 पे 0 है, 1, 1, 0 पे 0 है और 1, 1, 1 पे अगेन
क्रॉस लाइक दिस। हम चेक करते हैं लास्ट वाला केसी। केसी की चेक करें, इट इज क्रॉस 1, फिर 0 1 1 पे क्रॉस, फिर 0 1 1 पे 1, नाउ 1 0 0 पे अगेन क्रॉस, 1 0 1 पे 1, नाउ 1 1 0 पे क्या है, क्रॉस, 1 1 0 पे क्रॉस है, और 1 1 1 पे क्या है, 1 है। सो दीस आर द 6 के मैप्स फिलिंग। अब हम इनकी ग्रुपिंग करते हैं। इसके लिए ग्रुपिंग ये वाली होगी, इसकी वैल्यू होगी BC। इसके लिए देखिए, इसके लिए एक क्वाड बन जाएगा, इस क्वाड की वैल्यू होगी आपकी B। इसके लिए भी आपका क्वाड बन जाएगा, इस क्वाड की वैल्यू होगी C। इसके लिए भी आपका यहाँ पर ऐसा एक एक क्वाड बन जाएगा, और एक क्वाड ये बन जाएगा। इस क्वाड की वैल्यू क्या है, A नीचे वाले की, और इस बीच वाले क्वाड की वैल्यू है आपकी C। फाइन। अब इसके लिए आपका हम देखें, एक ये क्वाड बन जाएगा और एक ये क्वाड बन जाएगा। ऊपर वाले क्वाड की वैल्यू है A बार, और इस वाले क्वाड की वैल्यू है दैट इज B बार। इसके लिए आपका पूरा ऑक्टेट बन जाएगा। ऑक्टेट बन जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये ABC तीनों कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। सो आपके ये KMF से आपने इनके फ्लिप फ्लॉप इनपुट इक्वेशन निकाल ली। अब आप बनाएंगे लास्ट में डायग्राम। विल सी द डायग्राम, लॉजिक डायग्राम। तीन फ्लिप फ्लॉप्स हैं ABC, विल मेक 3 blocks। All are synchronized. Common clock pulse will be provided to all like this. This is flip flop A. Outputs are A. B bar. This is flip flop B. Outputs are B and B bar. This is flip flop C. Outputs are C and C bar. Now inputs are, this is J, K, JB, KB, JC and KC. Now let's see the inputs of all the flip flop. J क्या बोल रहा है, BC, मतलब AND गेट लगेगा, और inputs are BC. So this is B and next is BC. Now KB क्या, K क्या कर रहा है, B ओनली। तो B आपको डायरेक्टली यहां से आपने B लिया था, तो आपने डायरेक्टली यहां पर JB आपको लिया। तो आपका JK हो गया। नाउ JB है, JB C, तो C हमने यहां से नीचे से लिया था, विल गिव हियर डायरेक्ट C। नाउ व्हाट इज KA? KA इज A प्लस C, मतलब ऑर गेट। C हमारा ये है, दे रहे थे हम, A हम यहां से ले लेंगे, like this will take A. Now what is JC? JC is A bar plus B bar. A bar plus B bar मतलब प्लस है मीन्स और गेट, A bar plus B bar। B bar वाली लाइन ले लें। थोड़ा डायग्राम ऐसे बनाएं कि एक दूसरे को क्रॉस हो तो बबलिंग हो जाए, जंपिंग हो जाए। एंड B bar हम यहाँ से ले लें। एंड what is KC? KC is 1. We will connect directly to the logic 1. So this is the logic diagram of modulo 7 counter. So like this you can design any mod counter with the help of the flip flop given to us. So this is about modern counter. I hope you understand this topic. So इसको हम डिस्कस करेंगे डाउट क्लियर सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट होगा, till then take care of yourself, stay home, stay safe. Thank you.